everyone. First of all, I'd like to thank Smile Train India to have me here. I am so overwhelmed by speaking in front of such an august gathering. So I wrote a speech last night and I completely changed it after seeing the parents here. So whatever I wrote from last 3 days I prepared, I changed in last 3 minutes and I wrote 4 points and I'll speak on that. So I'm a dental surgeon who specializes in oral surgery, maxillofacial surgery and implantology. Though I made my career in dental implants, I have been placing implants now from last 6 years. I am a speaker and a key opinion leader for 3 major implant companies of this world. I speak for them around India. I organize my own personal implantology courses for new dental graduates. I am even honorary dental surgeon to Honorable Vice President of India. So I am the only person who is treating Vice President as a dentist outside from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. I was born on 20th April 1995 in a family of bureaucrats. My grandfather was a finance secretary of India. My Nanaji, he was Chief Justice of Rajasthan High Court. My father is a senior cardiac anesthetist and my mother, she's an oral and maxillofacial surgeon. And the child is born with left lip and palate at the hospital full VIP syndrome. And my mother says it was such a shocking moment for all of us. At that day, the shocking thing was that 3 more kids were born at the same hospital with left lip or palate. And out of 4 now, 2 were operated within 3 days. This is lack of awareness, non-speciality branches available at the hospital. So the takeaway message for the parents here is there is a right age, right time for such surgeries. You cannot just, if a child is born, हमने आज सर्जरी करा ली, ये नहीं हो सकता है. हमारे हिंदुस्तान में माइंडसेट ये है कि बच्चे के कोई डिफेक्ट पैदा हुआ है, अगर वो हुआ है तो हम उसको घर कटे होठ के साथ लेके नहीं जाएंगे. ये बहुत गलत है. उसको घर लेके जाओ, स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ, हर चीज़ का सही समय होता है, तभी वो चीज़ें ट्रीट होती हैं. सेकंड जो बात मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आई वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड ऑफ माई स्कूल when I first time I realized that I have some problem with my speech. There was a poem recitation competition and मैं घर आया, मैंने मम्मी को बोला कि आज थोड़ा मजाक बन गया है स्कूल में और कुछ प्रॉब्लम तो है मेरे में. She didn't came to school next day. She got a long 6 feet mirror and she kept in the corner of my room and मेरे साथ शाम को अपनी प्रैक्टिस करने के बाद वो आती थी क्लिनिक के बाद and she used to sit with me and बोलती थी पढ़ो 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 पढ़ो. मैं गलत होता था, वो रिकॉर्ड छोटा रिकॉर्डर आता था पहले, उस पर रिकॉर्ड कर लेती थी. वो मेरे को सुनाती थी कि तुम ये बोल रहे हो, फिर वो सही बोलती थी. ऐसे करते 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 इट वेंट फॉर 7 to 8 years. रेगुलरली रोज़ शाम को 8 से 9 बजे तक मेरी क्लास लगती थी वहाँ पे, मम्मी साथ बैठती थी और स्पीच थेरेपी हुई. तो स्पीच थेरेपी सिर्फ स्पीच थेरेपिस्ट का काम नहीं है, आप लोग का भी काम है, पेरेंट्स का काम है. पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. स्पीच थेरेपिस्ट का 1 घंटा है, आपने 1 घंटे के 2000 रुपये दे दिए, आप आ गए, आपको लगा हमारा काम हो गया. वो नहीं है. घर पे बच्चे को आपके साथ बैठना पड़ेगा, बच्चे के साथ उसको समझाना पड़ेगा, उसको बार बार करेक्ट करना पड़ेगा. अब गैजेट्स आ गए, एप्लीकेशंस आ गई हैं इतनी सारी, यू हैव यूट्यूब्स, आप घर पे करेक्ट कर सकते हो. स्पीच थेरेपी अगर हुईगी, अच्छी स्पीच अच्छी होगी तो एक ओवरऑल कॉन्फिडेंस होगा बच्चे के अंदर. एक स्टेज फियर होगा. मैं अगर उस दिन घर पे आके नहीं बोलता और मैं चुप हो जाता और मेरी स्पीच थेरेपी नहीं होती तो मैं यहाँ खड़ा नहीं हो पाता, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं होता. तो स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 3, फिर सर्जरी का टाइम आ गया. पुनीत बत्रा सर मस्ट बी सिटिंग हियर. केनाइन इरप्शंस का टाइम आता है. बहुत ऑर्थोडोंटिस्ट बड़े नाराज़ होते हैं कि सर्जरी कराओ सर्जरी कराओ सर्जरी कराओ. तो अगेन आई वेंट टू मुंबई टू माई प्लास्टिक सर्जन. डॉक्टर गुलेरिया होते थे तब. ही वॉज अ वेरी सीनियर प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया. ही पास्ड अवे फ्यू ईयर्स बैक. I went to him, he took a graft from my tibia and उन्होंने scoop करके graft यहाँ लगा दिया. केनाइन वेनाइन सब आने लगे होंगे बाद में, I don't remember. And when I came back to school, I was not allowed to play sports. I am a national tennis player and hockey player. मैं टेनिस और हॉकी बहुत खेलता था स्कूल में. जब मैं वापस आया तो मेरे को स्पोर्ट्स नहीं खेलने दिया. कहीं मेरी मम्मी भी डरती थी कि मुँह पे बॉल ना लग जाए. माई फादर मार मार के उन्होंने हमें स्पोर्ट्स खिलाया. उन्होंने कहा पढ़ाई मत करो मगर स्पोर्ट्स खेलो. ही सेड कि स्पोर्ट्स तो खेलना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए. पर स्कूल में भी नहीं खेलने दिया स्पोर्ट्स. तो आई रिमेंबर फॉर नेक्स्ट 3 to 4 months, 3 to 4 years, I was not allowed to play any sport.
एंड दैट वॉज अ टाइम जहाँ मेरे को लगा मैं लैक कर गया, मेरा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है। क्योंकि स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है कि आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी बिल्डअप देती है। हम ये सोचते हैं स्पोर्ट्स एक फिजिकल एक्टिविटी है, पर स्पोर्ट्स एक से फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। स्पोर्ट्स आपको हारना सिखाती है और हार के खड़ा होना सिखाती है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं जो नहीं खेलते हैं, आप प्लीज़ स्पोर्ट्स खेलो। और माँ बाप रोकते हैं तो लड़के जाओ, दीवार कूद के चले जाओ सुबह 5 बजे खेलने के लिए। आज मैं सुबह 5 बजे पूना गोल्फ क्लब गोल्फ खेल कर आया हूँ, कैन यू बिलीव इट? Morning 5 a.m. I was at the club. I've called my friend and I said I want to play golf. I am a golfer, regular golfer. Morning 5:30 I go to play golf. Evening 8 o'clock I go to play badminton. This is my routine. So sports बहुत important चीज़ है. Next है कि मे बी कुछ सर्जन्स यहाँ पे मेरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे इस बात पे, पर ये मेरा पर्सनल व्यू है. आई थिंक आई वॉज ऑन फर्स्ट ईयर BDS ज्वाइन किया, डेंटल सर्जरी ज्वाइन करी मैंने. एंड टीन एज था, 18 ईयर्स हो गए. लुक्स लेके बड़ा मैटर होने लगा. भाई लुक्स अच्छे चाहिए, अब तो लड़कियां भी पटानी है, घूमना भी है, बाहर भी जाना है, अब तो लुक्स चाहिए अच्छे. अब तब तक लगता था कि लगने लगा कि नहीं, स्कार अच्छा नहीं है, बाल नहीं आ रहे हैं मूँछों पे, और क्या हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है. सो अगेन वेंट टू बॉम्बे, पेडर रोड, डॉक्टर हाउस, डॉक्टर गुलेरिया के पास गए. एंड तब मेरा सेप्टोराइनोप्लास्टी का टाइम आ गया था, तो करानी थी. सेप्टोराइनोप्लास्टी जब करानी थी तो सर ने मेरे को एक मिरर दिया. एंड ही गेव मी अ मिरर एंड ही टेल मी, बताओ तुम्हारे में क्या प्रॉब्लम है, तुम क्या चाहते हो. तो जो मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम थी डेविएटेड नेजल सेप्टम की, वो तो मैंने बोली नहीं. मैंने कहा सर मेरा यहाँ से लिप स्वेलिंग लगती है, ये अच्छा नहीं लगता. मेरा मेलार रीजन दबा हुआ है, मेरे को ये अच्छा नहीं लगता. मेरे को लिप थोड़ा टेढ़ा भी लगता है, मेरे को जॉ भी टेढ़ा लगता है, मेरी नोज़ थोड़ी नीचे है. मैंने 6-7 पॉइंट्स उनको ऐसे बता दिए. 2 मिनट बाद उन्होंने मेरे से मिरर लिया. उन्होंने बोला तुम्हारे चेहरे पे 100 से ज़्यादा डिफेक्ट हैं, 5-7 डिफेक्ट नहीं है. अगर हम 100 डिफेक्ट ठीक करने ही चले गए तो तुम्हारे को 100 साल जिंदा रहना पड़ेगा. आई वॉज शॉक्ड. आई सेड कि उन्होंने बोली एक बात जो मेरे आज तक मेरे को याद है. उन्होंने बोला स्कार को हटाने के लिए मत भागो. वो जो स्कार है वो तुम्हारे को एक तुम्हारी कहानी बताता है. एवरी स्कार टेल्स अ स्टोरी. एंड ही सेड दैट कि अगर तुम चेहरे को अपने ठीक करना चाहते हो तो अपने अंदर के मन को और इंसान को ठीक करो, तुम्हारा चेहरा तुम्हारे उस पर दिख जाएगा. वो मेरे को बात ऐसी टच हो गई कि आज तक उसके बाद मैंने कोई एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं कराया. उन्होंने ज़रूर मेरी राइनोप्लास्टी थोड़ी सी माइनर कर दी सेप्टोप्लास्टी के साथ में, मैं उससे खुश हो गया था बहुत, पर उसके बाद मैंने कोई सर्जरी नहीं कराई. एंड दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि एस्थेटिक सर्जरी आप कराएं अगर आपको बहुत ज़्यादा उसको फील होता है तो. ज़बरदस्ती बच्चे को फोर्स नहीं करें कि यार इसका ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत पेनफुल होती है. लास्ट ईयर आई वेंट टू अ क्लेफ्ट सर्जरी अगेन. मेरा पूरा लिप खोला गया वापस क्योंकि मेरे एक फिस्टुला बन गया. एंड दे सेड दैट आपको तो पूरा क्लेफ्ट वापस करना पड़ेगा. एंड दैट क्लेफ्ट वॉज ओपनड अगेन, फुल क्लेफ्ट लिप. एंड आई वेंट टू सो मच ऑफ पेन. दैट डे आई रियलाइज कि मैं आज जब 27 साल का हूँ, जब मेरे ये पेन हो रहा है और मैं बता सकता हूँ ये पेन, तो जो 6-7 महीने का बच्चा है जब उसके दर्द होता होगा, बता नहीं पा रहा होगा, तो किस दर्द से वो निकल रहा होगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वही सर्जरीज़ कराएं जिस सर्जरीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो. अननेसेसरी नहीं छिड़वाएं. आई मे बी रॉन्ग इन दिस, आई एम सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग इन दिस, बट ये मेरा पर्सनल व्यू है. तो 4 टेक अवे पॉइंट्स, मैंने मेरी स्पीच पूरी चेंज कर दी पिछले 5 मिनट के अंदर. तो 4 टेक अवे पॉइंट्स ये हैं कि राइट टाइम, राइट एज विद अ स्पेशलिस्ट. आप ये जल्दीबाजी ना करें, ये जल्दीबाजी की चीज़ नहीं है. कहीं अप्लायंसेस दी जाती हैं पहले, उनसे भी बहुत फ़र्क पड़ता है. तो जल्दीबाजी नहीं, और स्पेशलिस्ट से ट्रीटमेंट कराएं. नंबर 2, स्पीच थेरेपी. स्टेज फेयर हटाने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए बच्चे को स्पीच थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्पीच थेरेपी आपको भी उतना ही अपना योगदान देना पड़ेगा जितना स्पीच थेरेपिस्ट दे रहा है. आप माँ बाप हो, आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हो. नंबर 3, स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. उसे सिर्फ फिजिकल फिटनेस की तरीके से नहीं देखें, उसे एक कॉन्फिडेंस की तरीके से, ओवरऑल पर्सनालिटी बिल्डअप की तरीके से देखें. अगर बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा, गिरेगा, लगेगी चोट आएगी, खुद खड़ा होना सीखेगा. अगर हम उसको शेल में रखेंगे, क्या होता है जनरली हम जो बच्चे डिफेक्ट से पैदा होते हैं उनको शेल में रखते हैं, संभाल के रखते हैं कि लग नहीं जाए, चोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए. उनको छोड़ दो खुला, गिरेंगे, संभलेंगे, अपने आप खड़े होएंगे. उनको रोक के बचा के मत रखो. बचा के रखोगे तो वो खड़े नहीं हो पाएंगे फिर कभी.
नंबर 4, सिर्फ वही सर्जरीज कराएं जिन सर्जरीज की ज़रूरत हो. अननेसेसरी बच्चे को बार बार नहीं छिड़वाएं. कोई फंक्शनल प्रॉब्लम हो तो ही ट्रीट कराएं. सर आप माई ऑर्थोडोंटिस्ट आफ्टर मी कि तुम अपनी ऑर्थोग्नाटिक नहीं करा रहे हो, तुम्हारे क्रॉस बाइट है. मैंने कहा सर मेरे रिटेनर से काम चल रहा है, थैंक यू, मेरे को नहीं करानी. So this is very important, these 4 points, and I'm thankful to SmileTrend India who have me here. Thank you so much for having me here, and it's a great day for me, and I'm very happy to share my experience with you. Thank you so much. Thank you.